ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮਾਰਤਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। नहीं डॉक्टर अंदर आया कि नहीं बाहर ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜਨਾ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ मैं आऊँगा बाद में। एक गाड़ी अपनी साथ दे दो, जो कमल वाली है साथ दे दो, मैं आऊँगा बाद में। जाना है बहन जी ले चलेंगे, मैं चलूँगा। हाँ, मैं मेरे वीरे मेरे मेरी मेरे वीरे का जन्मदिन है थोड़े दिन बाद। मेरे वीरे का जन्मदिन थोड़े दिन बाद। उसको अपनी गाड़ी ले आएंगे, देंगे भाई साहब, हम अपनी गाड़ी ले आएंगे, अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, ले आएंगे। नाम क्या नाम है उसका? बंद कर देनी है यार। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। नहीं डॉक्टर अंदर आया कि नहीं बाहर ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜਨਾ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ नहीं बंटी नहीं, हाँ हो गया फोन देखिए। हाँ बैठ जाओ थोड़ा आप चलवा रही ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਣਾ। चल भाई। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਡੈਥ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਜੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। डॉक्टर शेर मेरी बात उठाएगा भाई। हाँ जी। डॉक्टर शेरगिल आए तो जी सब ले लेंगे उसका फिल्म में भी सारा कुछ कहता है ਵੀ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ। ओके ये भाई साहब ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मेरी पूरी गल कर ਹਾਂ ਗੱਲ मेरी पूरी ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? 6:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? मेरी पूरी गल सुनो जेडी गल मैं पूरी कर रहा ना ठीक है ये ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 6:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। सिस्टर है ਹਾਂਜੀ। इन्हां दी सिस्टर है वो आए ਹਾਂਜੀ। वो स्टाफ नर्स है मैं अपने आप बेटी करवा दूंगी, आप डॉक्टर की बात। स्टाफ नर्स है वो कहनी डॉक्टर की चल रहा है मैं बाहर बोला सी मैं अंदर लेके गया ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ यही बात मैं अंदर लेके गया ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇ मैं क्या सीपीआर चल रहा है ये कहनी मैं बिठा सकते मैं ਜਨਾਬ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। हम पिछले ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ये बात ना कहो, सुनो मेरी बात। आपका ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਬੰਦਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? फालतू जो भीड़ है ਯਾਰ ਫਾਲਤੂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ?
ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਧੱਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ तेरा लड़का मर के तू यहाँ पे खड़ा बाहर चला जाएगा मेरी बात सुन तेरा लड़का मर के चला जाएगा तुम्हारा लड़का बाहर मरेगा मेरी बात सुन मेरी बात सुन ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ फिर मैं कह रहा हूँ एक बार भी डॉक्टर नहीं आया ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ मेरी ਨਹੀਂ ਆਏ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप दिलवाने की मैं दिलवाऊंगा 1 मिनट रुको ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ मर्जी से नहीं ले गया ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਆ कंसेंट से ਨਾ 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 ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ एक मिनट नहीं बनी थी यार साडी बिल्कुल नहीं बनी मैं इन्होंने कहता रहा मैं रुक जा यार रुक जा ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ और बच्चा जाके रोया ਨਾ ਨਾ बच्चा जाके रोया कि जरा रुक जाओ भाई एक बार आपसे भी गुजारिश है एक बार गुरु मैं आऊँगा बाद में एक गाड़ी अपनी साथ दे दो जो कमल वाली है साथ दे दो मैं आऊँगा बाद में नाल जाना है बहन जी ले चलेंगे मैं चलूँगा चलोगे ना? हाँ मैं मेरे वीरे मेरे ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ थोड़े दिन बाद उसको अपनी गाड़ी में ले आएंगे ले आएंगे भाई साहब हम अपनी गाड़ी में ले आएंगे अपनी गाड़ी में लेके आ रहे हैं ले आएंगे नाम क्या नाम है उसका बंद कर देना इन्हें यार सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं एक बार 5 मिनट रुक जाओ अब हमारी ये काम बताना मुझे और अभी ऐसे ना हाँ बेटे हाँ चंगा ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿਖਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਵਿਖਾਇਆ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾ ਧੱਕਾ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 1% ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਰੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ अब रजामंदी नहीं बन पा रही है कोई रजामंदी नहीं हुई जी क्या चाहते क्या मांग क्या आपकी ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੀ। 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਭਾਂਜਰਾਵਾਂ ਖੁਰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ। ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ। 4 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 4.5 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰੇ आदमी बाहर बैठे, तू बता नहीं सकता जी। कारण की हाँ जैसे जी, क्यों डेड हो कारण बस लापरवाही इनकी, डॉक्टर की लापरवाही है सारी। नहीं डॉक्टर करियो की कहना सी किवें हुई है? डॉक्टर साहब सानू मिले नहीं उस तो बाद। हाँ, बिल्कुल नहीं मिले, बाहर भी नहीं आए, बिल्कुल ही नहीं बाहर आए। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब सारे इकट्ठे होए ने ते डॉक्टर ने हाले तक अजे तक कुछ नहीं साडे कोल आया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया भी मेरे तो कुछ होया या नहीं होया जी। बिल्कुल नहीं, सानू कोई यार जवाब नहीं देता जी। की नाम है मुंडे दा? कितनी उम्र मुंडे है? का नाम सरवण है जी। कितनी उम्र है? 25-26 साल की उम्र है जी। मुंडा बाहर सेट सीगा, अच्छा जी। सिर्फ 10 दिन होए ने आया इत्थे मिलन वास्ते ते चलो माड़ा जिहा इन्हां नूं मिलन दा हुणे कर देने ऑपरेशन जी ते हुण की हां। बाहर केड़ी जगह तो सीगा जी? बाहर स्पेन तो जी। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ नहीं दे रहा। डॉक्टर बाहर तो आएगा जी, है डॉक्टर भी नहीं बाहर आ रहा है। डॉक्टर बाहर आए, कोई कार्रवाई तो जब ही होगी ना जब डॉक्टर भी कुछ बताए। हमें भी तो नहीं पता डॉक्टर के बारे में क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुई। आने के बाद मिलने की कोशिश की है डॉक्टर? मिलने ही नहीं दे रहे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अंदर जाए तो अंदर पुलिस डॉक्टर बुला मिले ली, तो डॉक्टर साहब ने पुलिस बुला रखी है। तो अपने पेशेंट को आपने देखा जो नहीं देखने दिया जी अभी तक तो। उसके पास भी नहीं जाने नहीं, फिर डॉक्टर ने ही पुलिस वालों को बुला लिया यहाँ। ठीक है। पुलिस वालों को बुलाया है, पुलिस वाले यहाँ हमारा आदमी चला गया, हमारी इतनी वैल्यू नहीं है आके पुलिस वाले बुला रखे हैं। डॉक्टर ने पुलिस वालों को बुलाया, हमने भी नहीं बुलाया। डॉक्टर को पता था भी इतना टाइम हो गया, बंदा गया है, कोई कोई ये बच्चा सुबह का यही बैठा है, इसको बता देते। पथरी का अगर कुछ भी ऑपरेशन हुआ है कुछ तो गलत हुआ ही है, वो गलती डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी, अभी शादी हुई है, अभी शादी हुई है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। लड़की अंदर बैठी है, आप बेटे बाहर ही बैठे ना। ये रही लड़की है, अभी इसकी जवानी कहाँ जाएगी? डॉक्टर ने तो लापरवाही कर दी है। कौन है सारे जो आ जाएगी बात सड़क पे खड़े खड़े बस हाँ डॉक्टर साहब, क्या पूरा मामला हुआ था, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा विवाद रहा? ये पेशेंट मेरे पास सुबह आए थे, पेन के साथ आए थे, लेफ़्ट साइड में पेन था इनको, और इनको मालूम था इनको स्टोन है। 2 महीने पहले इनको सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया गया था। मेरे पास आज सुबह आए थे, हमने इनके जो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे किए हैं। उसमें हमें पता चला भी कि इनके 2 स्टोन हैं, एक गुर्दे में स्टोन है और गुर्दे की पाइप में स्टोन है। उसके लिए हमने इनको ऑपरेशन के लिए सलाह दी थी। 3:35 के आसपास ये भर्ती हुए हैं सारा चेकअप होने के बाद, और 4:30 बजे के आसपास इनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया है। 4:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और ऑपरेशन चल रहा था। चलते चलते ऑपरेशन के बीच, ऑपरेशन के दौरान इनका दिल की धड़कन रुक गई। क्यों रुकी, किस वजह से रुकी, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरे को नहीं मालूम। अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं भी कैसा क्या हुआ। जब सारे चेकअप में टेस्ट नॉर्मल थे इस पेशेंट के, उसके बाद हमने जो हमारे फिजिशियन हैं और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं इनको तुरंत कॉल किया, वो तुरंत आ गए और जो प्रक्रिया होती है CPR की वो स्टार्ट की गई। स्टार्ट चल रही थी और फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट ने उसमें ज्वाइन कर लिया, जो चलती रही 7 बजे तक चलती रही। 7 बजे तक हम पेशेंट को रिवाइव नहीं कर पाए। 7 बजे हमने पेशेंट को फिर सबसे सहमति से जब पता चला भी कि नहीं रिवाइव हो पा रहा है तो उसको रोक दिया। कितने केसों में ऐसा होता है सर? मेरे करियर में ये फर्स्ट केस हुआ है अभी तक जिसमें ऑपरेशन के दौरान दिल की धड़कन रुकी है। सर सडनली एकदम से जो हार्ट बीट है वो रुक गई है, और वहीं परिवार का ये आरोप है कि उनको जल्दी से नहीं बताया गया, जबकि वो यहीं पर परिवार मौजूद था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था, देखिए जो परिवार के सदस्य थे उसमें से एक को बुला के हमने बता दिया था। उसके बाद थोड़ी देर में दूसरे सदस्य जो पढ़े लिखे थे उनको डॉक्टर आशीष ने बता दिया था, उनको अंदर भी बुला के दिखा दिया गया था, और उनको नॉलेज भी थी भी कि CPR में कितना होता है। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे हमसे, देखिए CPR में कितने शॉक्स दे दिए, कितने साइकिल हो गए, बट वो भी यही कह रहे थे भी कि CPR कंटिन्यू करो। उस टाइम 6:20 6:30 का टाइम था,
7 बजे तक हमारा CPR फिर भी चलता रहा, हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए। परिवार लापरवाही के भी आरोप लगा रहा है। किस चीज़ की लापरवाही का आरोप लगा रहा है? हमने अपनी तरफ से जो जो टेस्ट होते हैं ऑपरेशन से पहले वो सारे के सारे मापदंड पूरे किए हैं। जो फिजिशियन चेकअप होता है वो भी पहले पूरा करवाया गया है। अभी तक मेरे को नहीं लगता हमने कोई लापरवाही की है। अगर आगे चल के कोई लापरवाही प्रूफ होती है फिर हम देखते हैं। परिवार के सदस्य भी मिले हैं? अभी मिले थे। क्या बातचीत हुई है सर? उनको सारा अभी आपके सामने ही मिले हैं, जो भी परिवार के सदस्य मिले हैं, उन्होंने भी यही क्वेश्चंस किए थे भी ऐसा हो सकता है या क्यों हुआ, तो हमने भी जो जवाब दिया है वही उनको जवाब दिया है। डॉक्टर साहब, सारी बातें आपने परिवार को बताई, उन्होंने जैसे क्वेश्चन किया हम जवाब दिए। आपको लगता नहीं ये जो मिसकम्युनिकेशन बीच की रही है उसको दूर करने में समय लगा? कौन सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप बताइए। इसका मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा मैं हैंडल कर रहा था कम्युनिकेशन जी। इनके साथ। जब ऑपरेशन के लिए आए थे ये 2 या 3 लोग थे, ठीक है। जब ये सारा प्रकरण जब शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, ये सिर्फ 4 लोग थे, ठीक है। ये 4 लोग थे। मैं जा के इनको अंदर जो है ना बाहर OT के बाहर इनके रिलेटिव्स को, मैंने 3 रिलेटिव्स हैं, 3 रिलेटिव, एक लेडी चली गई थी वो करा के, 3 थे, 2 मेल थे 1 फीमेल था। तीनों को मैंने वहाँ उनको दिखाया है, ये प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ है। एक एक चीज़ उनको बताते रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो अंदर उस पर बिजी रहेंगे ना। अब उस टाइम पे काउंसलिंग मैं कर रहा था और वहाँ पर सारी मैं बता रहा था। लेडी ने वहाँ बाहर अरदास भी करी है, सब कुछ किया है, ये सब उसके सामने हुआ। उसने हर तरह की वो मांगी है कि भाई आजा, मैं 40 दिन ये करूँगी वो करूँगी, सब कुछ वहाँ पर उस लेडी को सब कुछ मालूम था और उसको बताया था, और वो नर्स भी थी। उसके बाद इनके जो मेन रिलेटिव्स हैं वो धीरे धीरे बाद में आते गए। वो जब आते गए वो एक मॉब का रूप ले लेते हैं। बुला डॉक्टर नू किधर है, ऐसी चीज़ों में हम डॉक्टर को कैसे बुला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा आप 4 लोग आ जाओ सर, मैं 4 लोग, मैं बैठता हूँ डॉक्टर साहब, वो 4 लोग हम डॉक्टर साहब को मिला देते हैं। हमारे आने वाले हैं, आ रहे हैं, अभी आने वाले आ रहे हैं। वो आने वाले सर 9:45 बजे आए हैं। बॉडी भी जा चुकी थी, इसमें से जो मैक्सिमम थे वो 9:45 बजे आए हैं। और ये सारा का सारा मामला इतनी देर से चल रहा है। मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं तब से हिला नहीं हूँ। मैं बोला मैं मिलाता हूँ। ये बोल रहे हैं, मैंने जिसको बोला है, मैंने बोला क्या मैंने आपको बोला नहीं? अभी भी उसने बोला हाँ सर आपने मैंने ये बोला। मैं कहा आप 4 आदमी आ जाओ, मैं डॉक्टर साहब से मिला देता हूँ। आ रहे हैं वो मिलेंगे, आ रहे हैं वो मिलेंगे। तो हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो मिलने वाले क्या उनको आने दो पीछे से, और आ रहे हैं उनको आने दो, उनको आने दो। और लेकिन जो साथ में आए थे उनको क्लियर कट हर चीज़ दिखाई गई थी। और OT के बाहर ऐसे वो एक विंडो है, उसमें से उनको दिखाया भी गया था, सब कुछ था। और वो लेडी स्टाफ नर्स है, उसने सारी चीज़ देखी। उसने एक एक जो टेक्निकल चीज़ें पूछी उनका डॉक्टर कपिल ने जवाब दिया है, डॉक्टर मनदीप ने जवाब दिया है। और डॉक्टर मनदीप उस टाइम आके बाहर उसको सब कुछ बता के गए थे। तो अभी परिवार को सारी चीज़ें समझा दी हैं, और जो डेड बॉडी है वो परिवार को दे दी गई है? हाँ जी, डेड बॉडी पुलिस ने ले ली है, और इसकी आगे की प्रक्रिया वो पोस्टमार्टम करेंगे कैसे है वो पुलिस आगे करेंगे। ठीक है सर।